Good morning, everybody. So today is International Yoga Day, as you all know. On 21st June every year, Yoga Day is celebrated. So before going further, let me give a brief about Yoga Day and the importance of yoga in our lives. Yoga Day was started in 2015 by the genuine effort made by the Prime Minister of India, Narendra Modi, and it is celebrated every year on 21st of June. Yoga is that medicine that has the power to cure any disease of the universe, even those which cannot be cured by the prescription of doctor. On the occasion of International Yoga Day, we have invited a corporate trainer, Mr. Rashmi Ranjan. Okay, so he is a well-known motivational and keynote speaker. So first I would request MD sir to present a bouquet to Rashmi Ranjan ji to welcome him to Excel. So before we go further, I will give a brief about Rashmi Ranjan ji. He is an author, innovative thinker and a successful management consultant with 16 plus years of diversified industry experience. He has trained and counseled more than 30,000 people in last 10 years in both India and US region for the clients in the field of IT, ITES, project management, education, manufacturing, coal, power, civic society and others. Mr. Ranjan has been equally accepted by participants from education, corporate and government sector because of his personality, communication and quick adaptability to industry challenges and requirements on the basis of his highly acknowledged diversified qualifications on national and international level. He has done an MBA in International Trade and Marketing Management from NIBM Chennai. He is an engineering graduate in information technology from first batch of very reputed college, Triple IT Kolkata. His continuous reading and learning enthusiasm has earned him several national and international accreditations. He has got many awards and recognitions also. To name just a few: Rotary Youth Leadership Award for the year 2000, Certificate of Appreciation by National Innovation Foundation, Certificate of Appreciation from Honorable Mayor of Gorakhpur. He is also appointed as District Coordinator for Gorakhpur region on honorary basis by reputed Indian International Teachers Association. He is also facilitated by Dr. Himanshu Rai, Director IIM Indore, at a grand event in Gorakhpur for Udan. He has also received letter of appreciation from Mphasis for my leadership and team management for bringing the outstanding results for end client within the short time of 2 months only. So I would request Rashmi Ranjan ji to just start the session. सुप्रभात सारे उपस्थित गणमान्य लोग, ICSIL कंपनी के जितने भी लोग आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आज इस शिविर में उपस्थित हैं, सभी को रश्मि रंजन की तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर में आज आप लोग उपस्थित हैं। आशा करूंगा कि आज की शिविर कई ऐसी भ्रांतियों को दूर करेगी जो कहीं ना कहीं आपके और योगा के बीच आ रहा है। कुछ जानकारियां मैं इस आयोजन के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगा। क्यों 21 जून ही रखा गया, ये खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मैडम नेहा मैडम ने बताया, पूरे डिटेल में इस बारे में बताया, लेकिन मैं इस चीज को आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। 21 जून ही क्यों, कोई और दिन ही क्यों नहीं? 21 जून बेसिकली समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस बोला जाता है, यानी सबसे बड़ा दिन जो होता है साल का वो 21 या 22 जून होता है। और इस दिन जो है धरती, जो अर्थ है, वो सूर्य की तरफ सबसे ज्यादा इंक्लाइंड होती है। तो वी हैव द लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, जहां सन जो है पीक पे रहता है। तो 21 जून इसीलिए रखा गया। और जहां तक बात है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कर,
तो 27 सितंबर 2014 को यूएन जनरल असेंबली को जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया और योगा के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, तो इसका एक ऐसा पहलू सामने आया जिसको सपोर्ट करीब 177 देशों ने, 177 नेशंस ने सपोर्ट किया और रिकॉर्ड 90 डेज में पहली बार रेजोल्यूशन पास हुआ और इसको 21 जून 2015 से पहला इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। अब इसके बारे में कहा जाता है, अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव को माना जाता है योगा को उत्पत्ति करने वाला जनक, और उनको आदि गुरु, पहला आदि गुरु भगवान शिव को कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने जब योग की शुरुआत की, जब योग को उत्पन्न किया, जब वो योग साधना में थे, तो कई लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था, लोग देख रहे थे, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 7 ऋषियों को इंटरेस्ट हुआ। वो वहां 84 साल, कहा जाता है 84 साल, 84 ईयर्स इंतजार करते रहे कि भगवान शिव अपनी समाधि से बाहर आए, अपनी योग साधना से बाहर आए और वो ज्ञान उनको मिले। उन्हीं को सप्त ऋषि कहा जाता है और इसी बहाने भगवान शिव पहले आदि गुरु कहलाते हैं, जिन्होंने वो ज्ञान ट्रांसफर किया। फिर बाद में दूसरी शताब्दी, और हम जानेंगे आने वाले स्लाइड्स में, योगा के पहले इंपॉर्टेंस, योगा क्या है, क्या सिर्फ किसी पोज को देना या श्वास की प्रक्रिया को करना ही सिर्फ योगा और प्राणायाम है? क्या यही योगा का सीमित दायरा है? नहीं। तो हम जानते हैं कि कोविड काल में हम लोग सभी बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरे हैं। अभी भी पूरी तरह से कोविड दुनिया से गया नहीं है, अभी भी है उसके, और इस दौरान हमारे काम काज, जीवन शैली पर बहुत ही दुष्प्रभाव हुआ। हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम हुई। आज भी हम लोग के अंदर वो टीम वर्क या एक दूसरे के तरफ शक की दृष्टि से देखने का जो रवैया है वो कम नहीं हुआ है। आज भी वो डर हमारे मन में है और इस योग के द्वारा ही दुनिया को मजबूत बनाया जा सकता है, स्वस्थ बनाया जा सकता है, शारीरिक, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी। तो योग जो शब्द है वो संस्कृत शब्द युज से आया है, जिसका मतलब है टू ज्वाइन, यूनियन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तीनों को जोड़ने का एक माध्यम है, एक प्रैक्टिस है। और आज हम आने वाले स्लाइड्स में किन किन एजेंडाज को, बेसिक, जिसमें हम जानेंगे योग क्या है, योग के अष्टांग क्या है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे, उसके प्रैक्टिसेस, एसेंशियल योगा पोजेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, आपके खान पान कैसे होने चाहिए, मेडिटेशन के बारे में, और योगा फॉर यू, यानी किन किन बीमारियों में कौन कौन से लोग, किस तरह के योगा उनके लिए रिकमेंडेड है। व्हाट इज योगा? अब आप देखिए, पतंजलि, नाम आपने सुना होगा, महर्षि पतंजलि, जो 2nd सेंचुरी बीसी में थे, और उन्होंने अपने 196 सूत्रों में से एक दिया था, योगा फॉर नाउ। यानी आप देखिए हमारा मन किस गति से चलता है और उसे कंट्रोल कर पाना बिना योग के बहुत ही मुश्किल है। आप फोकस कैसे करेंगे? आप काम कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान भटक जाए क्षण भर के लिए, एक्सीडेंट होगा, जीवन मृत्यु का सवाल आ जाता है। उसी तरह जीवन के हर एक क्षण में कोई ना कोई खतरा है। आप चलते हैं, कई बार आप देखते होंगे लोग कुर्सी पर बैठे बैठे हार्ट अटैक आता है और वो चल बसते हैं। शायद वो बहुत स्ट्रेस या डिप्रेशन में रहते हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने का, जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो जानना है कि पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में दिया था, योगा इज नाउ। यानी आप एक एक पल जो आप जी रहे हैं, योग उसी में छिपा हुआ है और आपको बहुत ही केंद्रित रूप से, बहुत ही फोकस्ड रूप में एक एक पल को जीना है। तो सिर्फ पोजेस बनाना कोई या प्राणायाम करना योग नहीं है। पहले आप एक एक पल को किस भावना के साथ, किस सोच के साथ, मान लीजिए आप योगा प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि योगा प्राणायाम जो कर रहे हैं उन्हें हार्ट अटैक्स नहीं आते, उन्हें स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं आते, क्योंकि कई चीजें, खान पान, सोच विचार, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जिस तरह की चीजों को आप रोज सुन रहे हैं, उन चीजों का नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे पड़ता है।
और आज के इस शिविर में हम पहले योगा को समझाएंगे, क्योंकि पोजेस और वो करना हमारी प्रायोरिटी आज के शिविर में नहीं है। दूसरा, पतंजलि, जिनको फादर ऑफ फिलॉसफी योगा का कहा जाता है, उन्होंने योगा को कहा था कि ये सिर्फ आप मूवमेंट ऑफ द माइंड को आपको अंडरलाइन करना है। मूवमेंट ऑफ द माइंड यानी मस्तिष्क, आप समझिए इस जटिल बात को कि मस्तिष्क जिस गति से चल रहा है उसे आप कैसे भी नहीं रोक सकते, पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज पर महर्षि पतंजलि ने ध्यान दिया था। योगा, जैसे मैंने बताया, उसका मतलब है योग, यूनियन या ज्वाइन, यानी यूनियन किस चीज का? बॉडी, कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों को जोड़ने का माध्यम है योग। मॉडर्न योगा जो है वो माइंड एंड बॉडी पर काम करता है, जो मॉडर्न योगा है। और आप आने वाले स्लाइड्स में जानेंगे कि मॉडर्न योगा को करने वाले कौन थे। स्वामी विवेकानंद, जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन से जब वो गए शिकागो, उन्होंने ही मॉडर्न योगा को अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया, बताया पाश्चात्य सभ्यता को कि योगा क्या है, भारतीय सभ्यता में योग की क्या महत्वता है। मच ऑफ द वर्क जो आप देखते हैं योगा में, वो मेंटल पर काम करता है, मेंटल एस्पेक्ट पे। कोई भी चीज, जैसे आप देखते हैं कितना भी डिफिकल्ट योगा पोजेस हो, वो दर्द जो आपको फील होता है वो आपको कहीं ना कहीं तैयार करता है जीवन के कठिन समय में आप कैसे उसको बर्दाश्त कर सके, कैसे उसमें अपना रास्ता खोज सके आगे बढ़ने का। तो वो पोजेस सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं करता है, माइंड को मजबूत करता है, बॉडी एंड माइंड। और कहीं ना कहीं आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको सही रास्ता दिखाती है, कष्ट को झेलने की और उससे सही रास्ते से बाहर निकलने की आपको रास्ता दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पोज लें और वर्क थ्रू सम डिस्कंफर्ट, कोई दिक्कत, कई लोग योगा 1-2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है यार, शरीर में दर्द हो रहा है, अब मैं इसको और ज्यादा दिन नहीं कर सकता। तो पहला 4-5 दिन लोग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये डिस्कंफर्ट जो है, ये आपको जो पेन है, ये आपको डिफिकल्ट टाइम्स आपके जिंदगी का उसमें ताकत देता है, उससे उसका सामना करने की, उन तकलीफों को जूझने की। फिजिकल जो है वो आपको मेंटल, और मेंटल जो है आपको फिजिकल, एक दूसरे के ऊपर ये आश्रित है कि फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट जो है योगा का एक दूसरे पर आश्रित है। 8 लिम्स ऑफ योगा, ठीक है, जिसे अष्टांग योगा भी कहते हैं, अष्टांग। अब आप देखिए, हम लोग पहले बेसिक्स ऑफ योगा से चल रहे हैं कि जानकारी बहुत जरूरी है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, कहावत है। आधी अधूरी नॉलेज, आपने कोई पोज देखा, यूट्यूब पर देखा और आपने उसको करने की कोशिश की, ज्यादातर उसका नकारात्मक, शायद इंजुरी हो जाए, बैक पेन हो जाए, दर्द हो जाए, क्योंकि आपने उसको स्टेप वाइज नहीं समझा। आपने जल्दी में कोई आसन को कॉपी किया और करने की कोशिश की, अलोम विलोम, कपाल भाती, आपको लगा बड़ा सिंपल है, इसको कर लेना चाहिए। लेकिन क्या खाया है आपने, किस माइंड स्टेट में आपने उसको शुरू किया है, ये सब चीज का दूरगामी परिणाम रहता है। तो आप इसको जानेंगे, यमास, इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, जानेंगे एक एक चीज को। नियामाज, जिसको कहते हैं मेथड ऑफ डिसिप्लिन। आसनाज, फिजिकल पोस्चर्स। प्राणायाम, जिसको ब्रीदिंग वर्क कहते हैं। प्रत्याहारा, जो असिस्टेंस विड्रॉइंग फ्रॉम द सेंसेस, यानी कि आप बैठे हैं लेकिन किसी तरह की गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, उससे अपने शरीर को निकालना, यानी अपने शरीर को उन चीजों से असर नहीं होने देना, इसको कहते हैं प्रत्याहारा। कैसे वो करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेडिटेशन वगैरह सारी चीजों पे हम बात करेंगे। फिर धारणा यानी कंसंट्रेशन, उसके बाद है ध्याना, मेडिटेशन, और फाइनली समाधि। समाधि जो फाइनल है योगा का, जिसमें आप माइंड और बॉडी को लिबरेट कर देते हैं, सारे दुख दर्द से आपको कोई भूख प्यास नहीं लगती है। समाधि, आपने देखा होगा कई साधु संत समाधि लेते हैं तो वो अन्न जल त्याग कर मेडिटेशन में जाते हैं और वो फाइनली शरीर को त्याग देते हैं बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दर्द के। वो समाधि है। इसे कहते हैं अष्टांग, यानी 8 लिम्स ऑफ योगा। पहला यमाज। यमाज में क्या होता है, हम अपने एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल, जैसे क्या होता है ऑफिस में
कई बार आप कहते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं बॉस, या कोई मेरा सबऑर्डिनेट स्टाफ पूरी बात सुने बिना ही तुरंत मतलब रिएक्ट कर जाता है या एक्शन पर कूद जाता है। तो यमास जो है ये डिफाइन करता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा रिएक्शन कैसा होगा। और 5 तरह के यमास होते हैं। पहला अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपना हथियार बनाया। सोचिए अहिंसा, अहिंसा क्यों नहीं सभी लोग अहिंसा के मार्ग पे चल जाते हैं। यह भी एक योग है, योग का पार्ट है अहिंसा। दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपारिग्रह। ये 5 तरह के यमास होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर योगा डे है, मैं बार बार इस बात पे इंफेसाइज कर रहा हूं कि आप पोस्चर्स पे और ब्रीदिंग पर ही सोचकर योगा के को ना समझें। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं पूरी बात, ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि के ये पूरे 8 अष्टांग जिसको कहते हैं, इनको जानना जरूरी है अगर आप सही मायने में लाभ उठाना चाहते हैं योगा के पोजेज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के। क्योंकि आपके मन में अगर छल कपट चल रहा है और आप कह रहे हैं ओम, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा आपके जीवन पे, क्योंकि मन मस्तिष्क में है भ्रष्टाचार करने की बात, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की बात, और आप वैल्यू को इनकलकेट नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं तो बस फिजिकल। तो इट इज जस्ट लाइक रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल। कैसे आप ट्रेडमिल या जिम जाते हैं और आप कह रहे हैं आई हैव लॉस्ट 10 kgs एंड 20 kgs, और जैसे ही आप फिर इसको छोड़ते हैं फिर कुछ दिन में आपका वजन बढ़ जाता है। लेकिन योगा इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज नॉट अबाउट परफेक्शन। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, उसको कितने सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, इस बात को इंफेसाइज करना होता है योगा में। मैं 1-1 घंटा योगा करता हूं नहीं, आप 15 मिनट करें पर रोज करें। यह नहीं कि आपने 7 दिन छोड़ दिया, 10 दिन छोड़ दिया, फिर वापस आप आ गए। तो किसी भी एक्सरसाइज, इट इज योगा में दर्द लेने को प्राथमिकता नहीं ली जाती है। यहां ये नहीं कहा जाएगा नो पेन नो गेन विदाउट पेन। यहां पर आपको गेन तभी होगा जब आप पेन को रिड्यूस करना जानेंगे। योगा में दर्द को कम करने के तरीके को सिखाया जाता है, तब जाकर गेन होता है। यह नहीं कि जैसे जिम में जितना पेन होगा आपको उतना गेन होगा। पेन को कम करना है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आते हैं अहिंसा। अहिंसा का लिटरली मतलब क्या है? नो इंजुरी। इजीएस्ट वे है, जैसे डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, जब वो डॉक्टर बन रहे थे तो क्या कहते हैं? फर्स्ट डू नॉट हार्म, डू नो हार्म। दैट इज व्हाट डॉक्टर्स, जब मेडिकल की डिग्री होती है तो दे टेक ए हिपोक्रेटिक ओथ। तो उसी तरह इसमें है अहिंसा में कि हम कोई तरह का हिंसा का काम नहीं करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टेप वाइज योगा के में डाइविंग कर रहे हैं। हम लोग डाइविंग सीखने से पहले, योगा में घुसने से पहले योगा के प्रिंसिपल्स क्या हैं उनको जान रहे हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसमें मेजर मेडिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे योगा प्रैक्टिस को कैसे करना है, प्रैक्टिस पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या होता है, अहिंसा क्या करता है? कंसीडर द फॉर प्रिवेंटिंग इंजुरी या सिकनेस। आप बहुत ज्यादा कठिन आसन करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी ने कहा कि ये आसन करने से आपकी बैक इंजुरी में आपको, या ओबिसिटी में, या किसी तरह के क्रॉनिकल डिजीज में आपको फायदा होगा। आपने पहले वो आसन ही शुरू कर दिया। उससे पहले वार्म अप एक्सरसाइज होते हैं कई तरह, आपने उन स्टेप्स को इग्नोर किया, डायरेक्टली आपने सीधे उसी आसन पर काम करना शुरू किया। डेफिनेटली इंजुरी या सिकनेस आपको होगा। दूसरा, अगर आपने बहुत ज्यादा आसन किया है, उसके बाद शवासन एक होता है, यू नीड टू रेस्ट। आपको अपनी बॉडी को, आपने क्या किया, आसन किया, उसके बाद यू आर बैक टू योर वर्क। नहीं, रेस्ट दीजिए, बॉडी एंड माइंड को काम कीजिए, रिलैक्स कीजिए फॉर 15 मिनट्स। एंड यू हैव टू सी, आई विल शो यू विद द फोटोग्राफ्स। हम लोग जब आसन में आएंगे, क्योंकि अभी इट इज नॉट द राइट टाइम टू डू, ये 7 o'clock 6 o'clock इज द राइट टाइम इन द मॉर्निंग। जब आप खाली पेट होते हैं उस समय आप योगा प्राणायाम जब करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलता है। या फिर आप 2 से 3 घंटे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद आप आसन प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइमिंग इज मॉर्निंग। ओके, अब अहिंसा को कुछ लोग कहते हैं वेगन। आपने ये वर्ड आजकल बहुत सुना होगा, वेगन मतलब आप जानवरों से प्रोड्यूस कोई भी चीजों को नहीं लेंगे, सिर्फ आप साग सब्जी ही खाएंगे।
आप ना दूध लेंगे ना दही लेंगे, जानवरों से प्रोड्यूस होने वाली कोई भी चीजों को नहीं लेंगे। बट क्या है कि उसको आप इतना ज्यादा इंफेसाइज इसमें नहीं किया जा रहा है। वो जो लोग करना चाह रहे हैं, जो वेगन पाथ लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ठीक है, बट इट इज ऑल अबाउट कि आप कंफर्ट लेवल आपके बॉडी का क्या है। अब उसमें भी आपका शरीर कमजोर होने लगे और आप कहें आई एम ए वेगन, और आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है वगैरह, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग कैप्सूल्स फॉर इट, तो आप कहीं ना कहीं अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। तो डेफिनेटली डोंट ट्राई टू इंपोज द थिंग दैट आई वांट टू बी अ वेगन, टू बी अ योगिक या योगा के पाथ पे चलने वाला बंदा बनना चाह रहा हूं। दूसरा, सत्य, ऑनेस्टी। सोचिए, हम अभी तक पोस्चर्स की बात कर रहे थे और योगा को यही सोचकर हम लोग, शायद मोस्ट ऑफ यू, इफ यू कुड रेज द हैंड, कितने लोग सोच के आए थे योगा और प्राणायाम का मतलब है पोजेज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखने जा रहे हैं? इफ यू कैन रेज द हैंड, कितने लोग? बी ऑनेस्ट इन योर रिएक्शंस। कितने लोग सोच कर आए थे? यू नो, इट्स अ कलेक्टिव वर्कशॉप। तो ये सोच कर, और कितने लोगों को लग रहा है कि ये सोच कहीं ना कहीं डिफर कर रही है इस वर्कशॉप जैसे आगे बढ़ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक रियली? थैंक यू फॉर दैट। जरूर हाथ उठाइए। इससे क्या होता है ना, ऑनेस्ट रिस्पॉन्स जब आता है तो पता चलता है कि क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, सत्य इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑफ ऑनेस्टी। ओके, आप कह रहे हैं साहब मैंने अलोम विलोम कपाल भाती शुरू किया है, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। आप सबको ये कह रहे हैं, यू नो आई एम फ्रस्ट्रेटेड यार, मैं तो योगा 1 महीने से कर रहा हूं या कर रही हूं, बट इट इज नॉट हेल्पिंग मी आउट। आप कर तो रहे हैं, उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल वाला खाना भी तो आपका इंतजार कर रहा है, चीज बर्गर पिज्जा भी आपका इंतजार कर रहा है, सैंडविचेस इंतजार कर रहे हैं, नान और पराठे भी आपका इंतजार कर रहे हैं, यू नो, लेकिन आप योगा जरूर रोज कर रहे हैं 15-20 मिनट। So what I'm trying to emphasize is yoga is not about, again I am repeating, और मैं करता रहूंगा रिपीट, क्योंकि मैं इस वर्कशॉप के एंड में जरूर चाहूंगा कि योगा is not about only putting some poses or doing some breathing exercise। आपको जो प्रॉपर महर्षि पतंजलि ने जो दूसरी शताब्दी में योग के जो सूत्र दिए थे, योगा इज नाउ, यानी आपको हर एक मोमेंट में योग साधना रखनी है। आपके सामने यू नो एड्स भी आता है, क्यों हम लोग वो दिखाते हैं ना कई कॉर्नफ्लेक्स वगैरह के प्रचार में, या मसाला कॉर्नफ्लेक्स खा लीजिए, अपने यू नो समोसा है, क्यों मर मर के जिए एंड ऑल दैट एड इंफेसाइजिंग, क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड इज इंफेसाइजिंग कि आप उनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, और उसके कई बहाने आपको देते हैं, मसाला ओट्स खा लीजिए, consult a doctor how much masala oats is good for your health। so indirectly or directly आप कंज्यूमर बन रहे हैं to those products which is jeopardizing your health, आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, कोई बहुत जल्दी तो कोई बहुत धीरे। so सत्य, इसको अपनाना पड़ेगा। be honest to yourself। या तो मैंने 10 दिनों तक समोसा छोड़ दिया, मैंने 2 किलो कम किया, फिर मैंने चीट डे कहकर शुरू कर दिया जो भी था। वो स्टाइल में आजकल आप देखते होंगे एक्टर एक्ट्रेस दे टॉक कॉल इट चीट डे। सो व्हेन यू टॉक एन एक्टर व्हाट इज योर चीट डे? संडे को मैं सब दबाकर खाता हूं या खाती हूं, कोल्ड ड्रिंक या जो भी मुझे फ्रिज में मिल जाए, यू नो। एंड व्हाट यू आर डूइंग, आपने 7 दिन, एंड देयर इज अ लेटेस्ट एड व्हिच टॉक्स अबाउट कि तुम्हारे भैया तो मोटापा कम नहीं कर सकते, तो करना तो शुरू कर दिया। एक एक्ट्रेस बोल रही है इन्होंने चीनी देखो छोड़ दिया, अब ये ले रहे हैं शुगर फ्री, अब ये हलवा खा रहे हैं शुगर फ्री डालकर, और 2 चम्मच चीनी, यू नो। सो इफ यू ऑब्जर्व द एड्स, इट हैज बीन सो मेटिकुलसली प्लान्ड कि ये आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है कि अब चीनी तो इनडायरेक्टली खा सकते हैं, इससे थोड़ी मेरा मोटापा। इन्होंने शुरू कर दिया, ना योगा ना प्राणायाम ना वॉकिंग, कुछ नहीं, बस चीनी छोड़ दिया और शुगर फ्री अब खा रहे हैं। प्लीज मत फंसिए ऐसे एड्स के चक्कर में, क्योंकि एड्स आर सेइंग वी विल गिव यू अ हेल्दी लाइफ प्रोवाइडेड यू बाय आवर प्रोडक्ट, लेकिन कोई प्रोडक्ट आपको हेल्दी लाइफ नहीं दे सकता है। वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको सत्य कहा गया है, ऑनेस्टी, नॉट ओनली विथ अदर्स बट ऑल्सो विथ योर सेल्फ। आप कहते हैं बॉस मैं ICSIL के साथ बहुत ऑनेस्ट हूं। आर यू ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ? आपने 20 दिन ICSIL में बहुत अच्छे से काम किया, उसके बाद आपकी तबीयत खराब होने लगी। आपने कहा सर मैंने 8 घंटे की जगह 10-10 घंटे काम किए हैं, मैंने अपना लंच भी स्किप किया है, मैं सुबह पहले आ गया, मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया है, बिकॉज योर बॉस विल बी हैप्पी टू हियर दिस। क्या कमिटेड इंप्लॉइज मिले हैं। उसके बाद लास्ट के 10-12 दिन आप बेड रिडन हैं।
सर जो 20 दिन काम किया था ना उसका नेगेटिव डॉक्टर कह रहे हैं यू हैव टॉर्चर्ड योर बॉडी एंड एज ए रिजल्ट नाउ अब मेरे पास 2000 की दवाइयां लिखी हैं डॉक्टर ने। नाउ यू टेल मी आपने कैसे डैमेज किया वर्क लाइफ बैलेंस को। वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात होती है, आप थोड़ा थोड़ा रोज समय निकालते, कंट्रोल करते, टाइम से डाइट लेते, डाइट प्लान को फॉलो करते, और आप देखेंगे दिल्ली में मैं भी 7 साल रहा, मैंने देखा लोग डाइट प्लान बनाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डाइट प्लान्स बनवाते हैं, लेकिन वो डाइट प्लान 10 से 15 दिन के बाद कोई ना कोई शादी बर्थडे के बहाने गायब हो जाता है। और एक बार अरे अब तो खा लिया तो अब यार जिंदगी क्या है, एक बार तो मिला है। लोगों के कॉमन डायलॉग्स हैं, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है ना। तो जहां एक शादी अटेंड कर लिया उस दिन डाइट प्लान खत्म, एक पार्टी अटेंड करे, यार बेटे की पार्टी थी कितना ना बोलते यार, मैंने तो छोटा सा लिया, बेटे ने इतना बड़ा केक दे दिया। तो भाई उसके बाद डाइट प्लान क्या था, उसके बाद तो छोड़ो यार डाइट प्लान, है ना। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। नो मीन्स नो, ये आपको गुरु मंत्र याद रखना है अपने लिए। नो मीन्स नो। मैं दिल से एक्सेल स्टाफ की तरफ से रश्मि रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि इन्होंने हमें इतने सुविचारों से एक पॉजिटिव अप्रोच कि हम अपने दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज करके एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, उन विचारों से हमें लाभान्वित किया और एक नई जागृति और एक नई दिशा हमें दी है कि इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में जहाँ पर हर जगह नेगेटिविटी चल रही है, स्ट्रेस है, टेंशन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, मनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर हम किस तरह से अपने मन को साध सकते हैं। और उस एनवायरनमेंट में भी हम एक सिटी लाइफ में, हम एक रूरल लाइफ में रहते हैं तो उसकी एक अलग वो होती है टेंशन्स, बट जब हम एक अर्बन लाइफ में रहते हैं तो उसके अपने आप में एक अलग तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। तो उस लाइफ में हम अपने आप को किस तरह से अपने जीवन को संजो के एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सर ने तो इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि संयम, सोच और सत्य, इन सब चीज़ों से हम अपने मन को एक तरह से, अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि जिससे हमारे को एक पॉजिटिविटी दिखे और हम छोटी छोटी बातों को लेके इतना स्ट्रेसफुल ना हो और उन चीज़ों को अपने ऊपर इतना हावी ना कर ले कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जो हमारी ज़िंदगी में होना है वो होना ही है, ये नियति पहले से ही हमारे लिए तय है। जैसे कहते हैं ना, सिर्फ आत्मा है, हमारे शरीर में आत्मा है जो अलग अलग रूप, मतलब अलग अलग शरीरों के अंदर जा रही है। तो इस मतलब अपने जीवन जो हमारा प्रेजेंट है, हम सिर्फ उसी को जिए और उसी में खुश होके रहें। सबसे बड़ा हमारे जीवन का जो मूल मंत्र है वो मुझे लगता है खुशी। अगर आप खुश हैं, आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी खुश रहेगा, आपकी आगे फैमिली लाइफ भी खुश रहेगी। तो सबसे जो कहते हैं ना मूल मंत्र है संतोष, साध्य और पॉजिटिविटी इन लाइफ। और जो भी आप करें उसको एक इस ऊर्जा के साथ करें कि आप तो खुशी हो पर आप दूसरों को भी खुशी बांटें। आपका एनवायरनमेंट में आप अपनी खुशबू बिखेर के जाएं, ताकि जब आप जाएं तो लोगों को लगे कि हाँ आप थे यहाँ पे, आपकी मतलब एक वो जो कहते हैं ना ऊर्जा और आपकी एक छवि हमेशा लोगों के मन में रहे। तो जैसे अब आप जाएंगे तो आपने जो इतने हमें बताए हैं पॉइंट्स, हमें कुछ ना कुछ तो याद रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरह से आपने बोला एक म्यूज़िक थेरेपी भी हमारे ऑफिस में इम्प्लीमेंट हो और हम 10 मिनट का समय निकाल के सारे इकट्ठे मिलके हम योगा करें। अब मैं हमारे जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पे आलोक मुखर्जी, उनसे निवेदन करूँगी कि आपको एक वोट ऑफ थैंक्स का एक हम ये नेचुरल प्लांट लेके आए हैं जो भी जरूर कैप्चर करें, हाँ, जो पॉजिटिविटी फैलाएगा। और जब भी तालियों के गड़गड़ाहट थोड़ी कम है। अब मैं लास्ट में बस एमडी साहब से निवेदन करूंगी कि एक बार ही सर को वोट ऑफ थैंक्स कहें और हम आगे भी इस तरह के सेमिनार्स करते रहेंगे। और एक्सेल स्टाफ की तरफ से मैं आपका हार्दिक शुक्रिया और अभिनंदन करूंगी। बहुत धन्यवाद।
थैंक यू आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा। तो कहता हूँ कि हमारा लाइफ ही स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल इज स्ट्रेस, उसके बिना कोई चारा है नहीं। लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस इज आवर लाइफस्टाइल। तो वो एस्पेक्ट अच्छा है कि योगा से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, आई एम श्योर सबको लगी होगी, कि आपने योगा का फिजिकल एस्पेक्ट नहीं बताया। ये करो, ट्विस्ट करो, टर्न करो, ये नहीं बताया। योगा हमें किस लिए करना है और उससे क्या अचीव होगा हमारे लाइफ में, वो चीज़ आपने ज़्यादा फोकस करी, जो कि जिस पे हम लोग उतना ध्यान कभी देते नहीं उसके अंदर, कि भाई हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आए, हमारा और दिमागी शक्ति कुछ बढ़े। व्हाट इज़ आवर अचीवमेंट, कि हम इसको ये फिजिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स करके करना क्या चाह रहे हैं अल्टीमेटली। सिर्फ ये नहीं कि भाई यहाँ इस कोहनी का दर्द कम हो जाए, लेकिन पूरा जो अपना पूरा जो सिस्टम है, पूरा माइंड बॉडी एंड सोल, अल्टीमेटली गोल ये है कि हमारा माइंड बॉडी और सोल, उसमें हमें शांति मिले। वो शांति मिलेगी तभी सब शांति है। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सो मच। आपने हम सब लोगों को एनलाइटन किया। आगे भी ऐसे सेशन हमारे चलते रहे ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम श्योर सबको हमें उससे लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।